students. How are you? You all are fine. I hope you all are fine at your home. Now, today I explain you chapter 1 part 2. Your chapter title is Revision of Level 1. It means your first standard का revision. वो 1 चैप्टर हमारा रिमेनिंग रह गया सा. सो आई एक्सप्लेन इट टुडे पार्ट 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस. वो सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. सो दे ऑल आर देवर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. वो क्या है? हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स है. और उसके अलावा भी हमने एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था. इट मीन्स स्पीकर्स, प्रिंटर और स्कैनर. वो सारे एडिशनल पार्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. सो नाउ वी मूव टू अवर टॉपिक द टक्स पेंट एप्लीकेशन. द टक्स पेंट application. So tux paint is a application to draw a images means to draw the picture. tux paint वो क्या है? tux paint is a application. वो क्या है? एक एप्लीकेशन है. उसकी मदद से हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पिक्चर. Teachers first open an Teachers double click on the touch paint icon and the application windows open. So students, do you know how we open our touch paint? So first you go in your start option. First you go click on your start button. Then after you click on your tux paint option. Which option? Tux paint option. And then after your this window is open. क्या करना है? First of all click on your start button. Then after you click on your tux paint icon and then after your this screen is display. So Tejas first open an existing file and play with the colors. तेजस क्या कर रहा है? उन्होंने पहले जो फाइल क्रिएट की थी उसको ओपन करके कलर कर रहा है. प्ले विद द कलर्स. Then he creates his own painting. Then he creates his own painting means वो क्या कर रहा है? अपने खुद से ड्राइंग कर रहा है. So he know that. तो वो क्या जानेगा? The tools for drawing can be found under a tools. So the tools for drawing can be found under टूल्स मेनू. विच मेनू? टूल्स मेनू. इट मीन्स कि हमको जो ड्राइंग कर रहे जो टूल्स की मदद से वो हमको कहाँ पे मिलेंगे? अंडर द टूल्स मेनू. कौन सा मेनू के नीचे मिलेगा आपको? टूल्स मेनू. सो सेट ऑफ टूल इज कॉल्ड टूल बार. तो उसको हम क्या बोलते हैं? टूल बार. अ सेट ऑफ टूल्स is called a toolbar. A set of tool it is called toolbar. उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम? toolbar. So do you understand here? So the various choice in a toolbar are called option. It is called options. Means कि आपके toolbar में different choice है. You can easily choose a different option like brush, pencil, eraser, etc. So the various choice in any toolbar it's called option. तो आपके different choice है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
ऑप्शन क्या बोलते हैं टूल बार को? टूल बार में ऑप्शन. So the tools and option that Tejas used to draw are, it means तेजस ये सारे tools की मदद से drawing कर रहे हैं. So here this is the list of tools. Then I explain you one by one. First, new option. So new option to get a blank canvas. So this is your canvas, but in this canvas here the picture, but in new option you click on your new option. So what happen? Your blank white canvas open. कौन से कलर का होगा open? Blank white canvas. And do you know the meaning of canvas? So canvas means your, sorry, so canvas means your drawing area. Which area? Your drawing area. कैनवास को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग एरिया. सो जब भी आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ब्लैंक कैनवास मिलेगा. ब्लैंक वाइट ड्राइंग एरिया. इट इज कॉल्ड ब्लैंक वाइट ड्राइंग एरिया. जब हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कैनवास है वो कैसे कलर का होगा? ब्लैंक होगा और वाइट कलर. ओके. Now we move to our second tool, shapes tool. Which tool? Shapes tool. So toolbar to get shapes like square, rectangle and triangle. It means हमारे टूलबार में 4 टाइप्स के टूल्स है, लाइक ए स्क्वायर टूल, rectangle tool, triangle tool and oval tool. So it is called shapes. उसको क्या बोलेंगे हम? Shapes. So it is called our shapes. Okay, you can easily see your shapes. Now, brush. So brush is a toolbar to color using the color palette. Means brush की मदद से हम कलर कर सकते. क्या कर सकते हो आप लोग? कलर. क्या कर सकोगे ब्रश की मदद से? कलर. Now, your next option, eraser. So the shape of eraser is like this. So this is your eraser. 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 So what is the use of eraser? So with the use of eraser we can रफ. क्या कर सकते हो आप? रफ कर सकते हो. नेक्स्ट, शेव ऑप्शन. Shave option is used to save the painting. It means if you draw here something, then with the use of save option you can save your painting. देखो ये पिक्चर में जो मैंने पेंटिंग ड्रॉ की है, तो सेव ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ये फाइल्स को सेव कर सकते हैं. ये पेंटिंग को क्या कर सकते हैं? सेव मीन्स स्टोर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में. ओके बच्चों. नेक्स्ट, प्रिंट ऑप्शन. सो प्रिंट ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट द पेंटिंग. प्रिंटिंग. इट मीन्स प्रिंट ऑप्शन की मदद से हम
ये पेंटिंग को अपने पेज पे ले सकते। मीन्स टेक अ प्रिंट ऑन दे पेपर। मीन्स ये पेंटिंग को हम क्या कर सकते हैं प्रिंट ऑप्शन की मदद से हमारे पेज में प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ योर लास्ट ऑप्शन quite. So quite option is used to quite the application. It means ये आपकी पेन एप्लीकेशन है, उसमें से आपको बाहर निकालना है। मीन्स आपके डेस्कटॉप पे, तो आप क्या करोगे? क्विट ऑप्शन को क्लिक करोगे। क्या करोगे? क्विट ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप अपने पेन प्रोग्राम में से बाहर आ जाओगे। अंडरस्टूड बच्चों? सो हियर योर टॉपिक डज एंड डोंट्स ऑफ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। मीन्स ये सारी चीज़ आपको कंप्यूटर के साथ नहीं करनी चाहिए, और जो करनी है वो कैसे करनी है, वो सारी ट्रिक यहीं पे आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है बच्चों? सो लेट्स शेयर एंड ईट आवर स्नैक्स नाउ। While we are eating, let us play a word game. I will give you a few words and one of you has to say how they are related to computer. Means यहीं पे मैं आपको वर्ड देता हूँ तो वो वर्ड्स कंप्यूटर के रिलेटेड कैसे है वो आपको देखना है। द योर वर्ड इज बी सेफ। क्या है? बी सेफ। ओ दिस इज गोइंग टू बी फन, लेट अस स्टार्ट। मीन्स ये गेम कैसी है? फनी। कैसी है? फनी। सो लेट अस स्टार्ट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। Be gentle. It means a computer works on electricity. कंप्यूटर किसकी मदद से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। बिजली की मदद से। किसकी मदद से? बिजली की मदद से चल रहा है। Ask the teacher to turn the computer on or off. Be gentle means if you push your computer, if you start your computer and push your finger into CPU button, so sometimes what happen? Your electric socket will damage, your cable will damage, so that's time you burn. मीन्स के वहीं पे क्या होगा? अगर आपने अपने टीचर्स को पूछे बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट किया या ऑफ कर देते हो, वही टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर केबल डैमेज हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होती है तो आपको भी वो हार्म होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर एंड आफ्टर टर्न ऑफ द कंप्यूटर यू आस्क योर टीचर। आपको अपने टीचर्स को पूछना चाहिए। कीप क्लीन। अ कंप्यूटर इज डेलिकेट सो प्रेस सॉफ्टली ऑन द की ऑफ द कीबोर्ड। लैब में बहुत सारे बच्चे जो अपने कंप्यूटर को ऐसे जोर जोर से प्रेस कर रहे हैं, तो वैसा करना नहीं चाहिए क्योंकि कंप्यूटर की कीज कैसी होती है बच्चों? सॉफ्ट होती है। तो उसे हमको कैसे प्रेस करना चाहिए? Softly. Do not pull the wires of a computer. मीन्स कंप्यूटर के वायर्स को उसके अंदर से हमको खींचना नहीं है। A computer should be protected from dust. Protect means रक्षण। Protect means सुरक्षा। A computer should be protected from dust. Means कंप्यूटर को भी डस्ट से प्रोटेक्ट रखना चाहिए। Keep the computer and its surrounding area clean. It means
आपको कंप्यूटर और उसके नियर बाय एरिया को भी क्या करना चाहिए? क्लीन। क्लीन मीन्स साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साफ। क्लीन मीन्स साफ करना चाहिए। कीप योर पोस्चर करेक्ट। कीप योर पोस्चर करेक्ट। सो पोस्चर मीन्स पोजीशन। क्या है? पोजीशन। पोस्चर मीन्स पोजीशन। सो कीप योर पोस्चर करेक्ट। तो आपको अपनी पोजीशन सही लेनी चाहिए। सीट स्ट्रेट। सीट सीट स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स सीधा। आपको कैसा बैठना चाहिए? सीधा। इन ए चेयर एट एन अप्रोप्राइट हाइट। अप्रोप्राइट मीन्स आपकी सुटेबल हाइट। चेयर पे कैसे बैठना चाहिए? स्ट्रेट और अपने हाइट के हिसाब से बैठना चाहिए। सीट एट ए प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनिटर। डिस्टेंस मीन्स गैप। डिस्टेंस मीन्स गैप। आपको क्या रखना चाहिए? गैप रखना चाहिए। किसके बिटवीन में? आपकी सीटिंग अरेंजमेंट और मॉनिटर के बिटवीन में क्या रखना चाहिए आपको? गैप रखना चाहिए। डू नॉट कीप योर हैंड ऑन द माउस कंटिन्यूअसली। आपको अपना माउस को आपको अपना हैंड्स को माउस पे कंटिन्यूअसली रखना नहीं चाहिए। सो दैट वॉज गुड। नाउ लेट अस गो बैक इनटू द कंप्यूटर रूम। चलो हम जाते कहाँ पे? कंप्यूटर रूम में। Mose gives Jyoti and Tejas handout about the desktop. मोज ज्योति और तेजस को डेस्कटॉप के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो हियर आई एक्सप्लेन यू अबाउट एक्सप्लोरिंग द डेस्कटॉप। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉल्ड डेस्कटॉप? So the screen, sorry, the screen where all the icon are arranged is called desktop. Is called desktop means आपके कंप्यूटर. Look it in this picture. This is your computer screen. और उसमें ये छोटे छोटे आइकॉन्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द स्क्रीन वेयर ऑल द आइकॉन आर अरेंज सो इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। मीन्स आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो छोटे छोटे आइकॉन हमने अरेंज किया है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। So students, and do you know what is called icon? Students, do you know what is called icon? So icon means so the small picture that we see on the screen means ये आपके कंप्यूटर में जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आइकॉन्स। उसको क्या बोलते हैं? आइकॉन्स। So third point,
icon of the application that we use often are kept on the desktop. मीन्स जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते और आइकॉन का यूज़ करते तो वो कहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है. Now the bar at the bottom of the desktop so is called टास्क बार. इसको क्या बोलेंगे हम? टास्क बार. मीन्स कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बॉटम में जो बार दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार. द डेफिनेशन ऑफ task bar. The bar at the bottom of the desktop is called the taskbar. So here you can easily see this is for Ubuntu user and this is for Windows user. So we use just only Windows 8 user desktop. Okay. Now window. So to start an application, double click on its icon on the desktop. मीन्स हमको कोई एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो जिस एग्जाम्पल टक्स पेन को ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी? उसके ऊपर माउस की डबल क्लिक करूँगी तो वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? ओपन. द एप्लीकेशन ओपन्स ऑन द डेस्कटॉप. वो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगी. मोर देन वन एप्लीकेशन कैन बी स्टार्ट एट ए टाइम. मीन्स विंडो में आप एक साथ 2-3 एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हो. Whenever you click on window, the computer brings it in front and allow you to use that application. मीन्स जब भी आप विंडो पे क्लिक करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है? उसकी एप्लीकेशन को फ्रंट पे लाता है, आगे लाता है तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो. दिस इज ए ऑप्शन फॉर क्लोज विंडो, minimize window and restore window. With the use of close option, our window will close. मीन्स हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन में जो एप्लीकेशन का विंडो दिख रहा है उसको क्लोज करने के लिए. मिनिमाइज मीन्स हमको हमारी एप्लीकेशन को डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिखाना नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? मिनिमाइज. Now close button. Close button at the top left right corner of a window is used to close the application. मीन्स हमारा क्लोज बटन कहाँ पे? टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. विंडो के टॉप में राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे है. कहाँ पे? लेफ्ट राइट कॉर्नर पे. और उसका यूज़ क्या है? क्लोज द एप्लीकेशन. मीन्स हमारी एप्लीकेशन को क्लोज करने का. नेक्स्ट मिनिमाइज. सो मिनिमाइज बटन एट द टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर ऑफ ए विंडो मेक द विंडो वेरी स्मॉल. मीन्स हमारी विंडो को स्मॉल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मिनिमाइज. नाउ योर थर्ड ऑप्शन टास्क बार. तो मैंने पहले ही आपको बताया टास्क बार कहाँ पे है बच्चों? बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. कहाँ पे है? बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. मीन्स हमारे डेस्कटॉप के बॉटम के पोर्शन मीन्स नीचे के पोर्शन में है. द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार. उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? टास्क बार. When you open any application, a small window of that application appear on the taskbar. So this is called tab. मीन्स जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका स्मॉल विंडो दिखता है आपको टास्क बार में. कहाँ पे?
टास्क बार में तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैब। उसको क्या बोलते हैं, टैब। द टास्क बार हैज one tab for each window on the desktop। मीन्स टास्क बार में हर एक विंडो की वन ही टैब होती है, ठीक है। नेक्स्ट, all the applications that have been started can be seen in the task bar। मीन्स हम जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो कहाँ पे आपको दिखेंगी, टास्क बार में। कहाँ पे दिखेंगी, टास्क बार। क्लिकिंग ऑन ए टैब ऑन द टास्क बार विल ब्रिंग दैट विंडो टू द फ्रंट। मीन्स टास्क बार की टैब पे क्लिक करते तो विंडो को कहाँ लाते हैं, फ्रंट में। Next we move over title bar. So the top bar of window is called the title bar. Here you can easily see. The top of the window is called title bar. उसको क्या बोलते हैं, title bar। The top bar of window is called title bar। मीन्स जब भी विंडो अपना ओपन करते हो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो वहीं पे टॉप पोर्शन में आपको दिखाएगा, उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। यू कैन रिकॉग्नाइज द एप्लीकेशन इन अ विंडो बाय द टाइटल इन द टाइटल बार। मीन्स आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को उसके टाइटल के साथ कहाँ पे दिखेगा, उसका टाइटल टाइटल बार में। कहाँ पे दिखेगा आपको बच्चों, टाइटल बार में। नेक्स्ट, वॉलपेपर। सो द पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। द पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। मीन्स डेस्कटॉप पे जो पिक्चर्स है उसको क्या बोलते हैं, वॉलपेपर। सो और राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप ब्रिंग अप ए डायलॉग्स बॉक्स। अब जब भी डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होता है, एंड वन ऑफ द ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द वॉलपेपर। और वहीं पे एक ऑप्शन लिखा हुआ होता है, पर्सनलाइज। क्या ऑप्शन, पर्सनलाइज। एंड यू क्लिक ऑन योर पर्सनलाइज ऑप्शन, एंड देन आफ्टर you can change your wallpaper. Sometimes when we click on print option, the computer does not print. Is it because the printer is not connected? वो प्रिंट क्यों नहीं होती है, बहुत टाइम हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हो बट प्रिंट नहीं होती है क्योंकि वहीं पे हमारा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। So dear students, I hope you all are understand your chapter 1, revision level of 1. Now we move to our worksheet. First, Munmun the squirrel is searching for the following words in the grid. Help her by circling the words. One is done for you. उसको ये सारे आइकॉन को फाइंड आउट करके देना है। डेस्कटॉप, टास्क बार, क्लिक, विंडो, आइकॉन, क्विट, ओपन, सेव, वॉलपेपर, टाइटल बार, न्यू एंड क्लोज। सो वन बाय वन आई शो यू। दिस इज ए विंडो। सेकेंड, आइकॉन, ICON। नेक्स्ट, CLOSE, close, and then after this is a new NEW. Next, this is your desktop, this is your quit, this is your title bar, this is your task bar, this is your wallpaper, and this is your open, and this is by default give your exercise click option. So I hope you easily find out from your textbook, and this exercise you must be write in your textbook from your study material. I put your answer key in your study material and you can easily write.
Step 2. List the place where computer are used. For what purpose are computer used at each place. मीन्स आपको क्या करना है, लिस्ट लिखना है कि ऐसे कौन सी प्लेस है जो प्लेस पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन, वेट, फर्स्ट वन, railway station. Where? Railway station. At railway station we are using computer to book a tickets. क्यों यूज़ करते हैं हम वहीं पे, टिकट बुक करने के लिए. नेक्स्ट, बैंक. नेक्स्ट, बैंक. बैंक में क्या करते हैं, टू स्टोर लिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर इंफॉर्मेशन. बैंक में कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वो अपने जो कस्टमर्स मीन्स स्टोर लिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर इंफॉर्मेशन, जो लोग हैं उसकी इंफॉर्मेशन और उसका लिस्ट स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट, लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्यों यूज़ होता है कंप्यूटर, स्टोर ए रिकॉर्ड ऑफ बुक्स. मीन्स बुक्स का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. नाउ, मिंटू मंकी loves banana, but the banana tree is on the island across the river. It help her reach there by making the 7 stone with the name of item related to a computer. Means मीटू मंकी को कहाँ पे जाना है, बनाना लेना है उसको, तो वो क्या यूज़ करेंगे, 7 स्टोन्स रिगार्डिंग कंप्यूटर. मीन्स कंप्यूटर रिलेटेड जो 7 स्टोन दिए हैं उसका यूज़ कर, उसके ऊपर आपको क्या करना है, टिक मार्क. क्या करना है, टिक मार्क. नाउ हियर आई टेक सेव इज यूज फॉर वर्ड फॉर कंप्यूटर. कीबोर्ड इज ऑल्सो वर्ड ऑफ कंप्यूटर. स्पेस बार is also word of computer. Monitor, pencil is word of computer. No. Blackboard, no. Rope, no. Mouse is yes. CPU, yes. And printer, yes. So want to reach for eating banana. वो कहाँ पे पहुँच गया, बनाना खाने के लिए. कैसे जाता है, 7 स्टेप जो है उसके हिसाब से जाएगा. सो दिस इज ए वे टू रीच मोंटू. ओके, इन योर बुक यू जस्ट टिक मार्क ऑन द पॉइंट. क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, सिर्फ टिक मार्क करना है. ओके, ऐसे ऐसे बस. So I hope students you all are understand your exercise and as well as unit 1. Okay, आपको समझ में आ गया बच्चों. So I hope you all are understand. आप सबको समझ में आ गया है और आप सब ये एक्सरसाइज अपने कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक में लिखोगे भी और अपने टीचर्स को भी सबमिट भी करवाओगे. ओके बच्चों, थैंक्स. हैव ए nice day. If you like my video, so you like and subscribe my channel. Thanks. Have a nice day.